Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. Today we are going to talk about import substitution, which is also known as inward-looking trade policy. Now, what do you mean by import substitution? Import substitution refers to a process in which instead of purchasing the goods from outside, this is India, it is a situation in which this is ROW, in which we are putting restriction on the imports. I'm representing imports with the help of M, and decreasing the imports and increasing the export, or you can say the producing the goods and services within the domestic boundary which we are importing from rest of the world. After COVID, it has made us realize that we need to work on that particular thing as well. Again, even though the globalization is happening, the liberalization, privatization, all such things are happening, but here the related term is globalization. Even the globalization is making the things cheaper, but it doesn't mean that we should totally dependent on the rest of the world. डिपेंड रहना चाहिए, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. ऐसा नहीं है कि खुद ही प्रोड्यूस करना बंद कर दो. सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस पॉलिसी, देन यहाँ पर वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, but definition wise भी मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ. It refers to a situation in which a country substitutes the imported goods with the domestically produced goods. जैसे कि आप कार है, कार बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम इंडिया में ही फिएट बना रहे हैं, हम इंडिया में ही एम्बेसडर कार बना रहे हैं. इस तरीके से आप बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं, इवन दो कहीं ना कहीं आप कितने भी कोशिश कर लें, आपको रॉ मटेरियल चाइना से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट फिर भी माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज हैं, लावा जैसी कंपनीज हैं, हालांकि गायब हैं, लेकिन ऐसी कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं. दे शुड प्रोड्यूस द गुड्स, दे शुड इंक्रीज देयर क्वालिटी, सो दैट पीपल्स फेथ विल इंक्रीज इन देयर ब्रांड. इसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं. मैंने जैसे एग्जांपल मैं यूजुअली देता रहता हूं कि आप पिज्जा खाना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ बाहर की किसी शॉप से परचेज करने के बजाय जब आप उसे अपने घर पे ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल import substitution. Instead of purchasing the commodity from outside, from rest of the world, आप खुद बनाइए उसे. The next point is policy of import substitution. So if you talk about policy of import substitution, ये policy क्या है? So let's pay attention. India followed the policy of import substitution since independence to 1990. Then after everything changed, we followed this policy of import substitution till 1990. Independence से लेके 1990 तक हमने follow किया. This policy was adopted by Indian government in the initial phase of development to achieve two objectives. So there were some objectives attached to import substitution as well at that time. The very first objective which was attached to it was saving India's foreign exchange. I hope you must know this thing that whenever we purchase anything from ROW, we need to transfer the foreign exchanges. वो देने पड़ते हैं. तो हम हमारे फॉरेन एक्सचेंजेस को सेव कर सके, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर हैविंग डर्थ ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंजेस की कमी थी, डर्थ थी, स्कैर्सिटी थी. तो हम लोग इसको सेव करना चाहते थे, सो दैट वी वुड बी एबल टू स्पेंड द फॉरेन एक्सचेंजेस फॉर द इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स. इवन दो टुडे इज द the scenario has completely changed. India is one of the largest foreign exchange holder country in the world आज के टाइम में. At that time we wanted to save foreign exchange. तो ये पहला पॉइंट रहा, पहला ऑब्जेक्टिव रहा. And India wanted to achieve self-reliance in the production of food grain and primary raw material, etc., capital goods, etc. So we wanted to be a self-reliant, self-independent or independent country. So because of that, we implemented the policy of import substitution. हम खुद करें जो करना है, और इसकी हेल्प से काफी सारी कंपनीज भी हैं जो बहुत ग्रो हुई, बाद में सामने आई.
तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग अचीव करना चाहते थे बिकॉज ऑफ पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई डिड वी रिक्वायर दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी? If we talk about that particular thing, then to reduce the dependence on foreign countries by developing substitutes of imports. So instead of purchasing, instead of depending on the foreign countries for the import of goods and services, it's always better to produce such kind of goods and services in your own country. आप दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहिए, आप दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट मत रहिए, आप खुद कीजिए जो आपको करना है. That's what we call reduction in dependence on foreign countries by developing substitutes of imports. The next point is import substitution reduces the import bill. Import bill matlab the bill, the amount which you are expected to pay to the rest of the world for purchasing, for importing the goods and services. तो import bill की वैल्यू हमारी कम हो जाती है, हमें पेमेंट कम करनी पड़ती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, एंड दैट इज समवेयर हेल्पफुल in tackling this problem of shortage of foreign exchange. जो हमारे पास उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत हेल्प कर रहा था. Import substitution promotes the domestic industrial development कि instead of purchasing the foreign goods we should purchase it from Indian companies only, और ये आज भी होना चाहिए. I personally believe that somewhere we are following Make in India type of projects. We have made such kind of policies. I think we should promote the domestic industrial development, and if the foreign direct investment is happening, then that should take place in infrastructure. कि वो सप्लीमेंट्री रोल हो, ना कि कंप्लीट जो सिग्निफिकेंट रोल हो वो उन्हीं का हो. तो ये डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पर. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट can be reduced by growing domestic industrial development. So if the government is somewhere trying to reduce the problem of unemployment, if Indian domestic industries will improve, अगर ये improve होंगी, तो employment opportunities will also improve and the problem of unemployment can be simply reduced. अगर आप ये industrial development कर पाते हैं तो, unfortunately we were not able to get the benefit of such kind of policies at that time because we were having a different mindset, at that time. हमें लग रहा था कि हम अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लें, दूसरे का कोई जो है वो एंट्री ना होने दें, और then we will be able to make the profits. बट ये सबसे बड़ी गलती थी, and all those industries which were thinking like that, they are non-existent in today's scenario. तो इस तरीके की सिचुएशन थी, आपको ध्यान रखना चाहिए. If we talk about phases of import substitution, then there are three phases of the policy of import substitution. Import substitution की पॉलिसी के 3 phases थे. मतलब कोई भी चीज आप एक बार में नहीं कर पाते, धीरे धीरे करके करते हैं. जैसे कि मान लीजिए पहले बच्चे का फर्स्ट टर्म इंप्रूव करो, फिर उसका सेकंड टर्म इंप्रूव करो, फिर उसका प्री बोर्ड इंप्रूव करो. लेकिन अभी जो नई पॉलिसी आई है, नई असेसमेंट स्कीम आई है, वो उसने बिल्कुल ये सारा चेंज करके रख दिया है. एनीवेज, डाइवर्ट नहीं होते हैं टॉपिक से. फर्स्ट फेज की बात करते हैं. Import substitution in the form of domestic production of consumer goods. कि पहले तो import substitution करो consumer goods का. All those consumer goods which we are importing from rest of the world, they should be finished. The import should be stopped. The import should be we need to put a full stop there. हमें वहां पे full stop लगाना चाहिए इन सारी चीजों पे, और ये कंट्रोल करना चाहिए. सो यहाँ पर टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स खुद प्रोड्यूस करने चाहिए, लिमिट लगानी चाहिए. सेकंड फेज में ये कंज्यूमर गुड्स पे हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो कैपिटल गुड्स पे आ जाओ. अब कंज्यूमर गुड्स तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सेकंड फेज में डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना चाहिए, कैपिटल गुड्स का, इंजीनियरिंग गुड्स का, ऑल दोस गुड्स व्हिच आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर कमोडिटीज. बाकी की कमोडिटीज में जो एफिशिएंट हैं प्रोडक्शन में, उनको यहाँ पर यूज करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, द थर्ड फेज इज, अब यहाँ पर आपने कंज्यूमर गुड्स में भी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली, कैपिटल गुड्स में भी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली. नाउ इन द थर्ड फेज you need to reduce the dependence on imported technology. अब टेक्नोलॉजी भी अपनी भी होनी चाहिए, और इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं,
इतने टैलेंटेड लोग हैं। आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर इन माय मोबाइल फोन टुडे, तो उसमें बताया गया कि एक इंजीनियर था, उसके ब्रदर ने उससे मोटरसाइकिल मांगी, उसने साइकिल को मोटरसाइकिल में कन्वर्ट करके दे दिया, मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल जैसे कंसेप्ट जो है। और हम लोग इतना एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाते हैं टेक्नोलॉजी। आज भी इसरो जो है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की, उस वहां वो बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं, दूसरी कंट्रीज जो हैं, इंडिया में आके सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पे हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, दूसरी कंट्रीज उस प्राइस पे सोच भी नहीं सकती सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। सो वी आर वेरी इकोनॉमिकल, वी आर वेरी कॉस्ट एफिशिएंट। इंडिया में सिर्फ टैलेंट को पहचानने की कमी है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द टैलेंट। अदरवाइज टेक्नोलॉजी में इंडिया का आज भी कोई जवाब नहीं है, अगर हम उस तरीके, उस इतनी अपॉर्चुनिटीज ढंग से वो सारी चीजें इनकलकेट कर पाए हम आज के बच्चों में, आज के जनरेशन में। So the third phase was about reducing the dependence on imported technology and encouraging the use of indigenous technology. जो हमारी domestic technology है, उसको promote किया जाए। We are having so many genius in our own country, जो ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई गेव यू द एग्जांपल दैट अ गर्ल वाज देयर एंड उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक बग निकाला, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसको ऑलमोस्ट 22 लाख रुपीस का प्राइज मनी दिया, और उसको बिना किसी जो है डॉक्यूमेंट के या बिना किसी क्वालिफिकेशन के उसको कंपनी में जॉब दे डाली कि अब आप हमारे लिए काम करो, और भी कोई बग है वो भी ढूंढो। यू ऑल पीपल नो कि नासा में मोर देन 35% पीपल आर इंडियंस। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, सारे इंडियन ओरिजिन है। और अभी वो कल्पना चावला के साथ सिरीशा समथिंग क्या नाम है, वो एयर स्पेस में जाने वाली दूसरी इंडियन ओरिजिन की जो है गर्ल होने वाली है। तो इतनी सारी चीजें हैं, हम लोग इतना डेवलप कर रहे हैं। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट, वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द टैलेंट विच इज अवेलेबल इन इंडिया। इसको सिर्फ फाइंड आउट करने की जरूरत है हमें। The next point which we are going to discuss over here is forms of protection. तो import substitution को promote करने के लिए किस तरीके का protection हमने दिया, what kind of protection policy we followed at that time. So whenever we talk about forms of protection, two specific things come in our mind at that time. The very first thing is tariff, and the second thing is quota. If we talk about the first thing, that is tariffs, अगर tariff की बात करें, so increasing tariffs यानी कि ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, कहता है increasing tariff makes the imported goods costly as the government charges duty on such goods. होता क्या है, आप बाहर से कोई गुड्स लेके आते हैं, आप उस पर टैक्स चार्ज कर दीजिए, वो कमोडिटी अपने आप महंगी हो जाएगी। मान लीजिए बाहर की कंट्री में वो 10 रुपए की मिल रही है, इंडिया में आते ही वो 15 रुपए की हो जाएगी, और 12 रुपए की डोमेस्टिक कमोडिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली चीज के सस्ते होने से बहुत फर्क पड़ता है। एलपीजी के बाद में रिस्ट्रिक्शंस हमने हटाई, रिजल्ट आपके सामने है कि आज डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को कोई ना पूछ के चाइनीज प्रोडक्ट्स और बड़ी बड़ी एमएनसीज जो प्रोड्यूस कर रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को लोग ज्यादा पूछ रहे हैं। तो ये टैरिफ हम लोगों ने टैरिफ पॉलिसी फॉलो की थी 1991 से पहले। इट मेक्स द इंपोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव, which reduces the demand for foreign goods and increases the demand for domestic products. इससे क्या होता है कि फॉरेन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, इंडियन गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और इस तरीके से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बाय फिक्सिंग कोटा। आप कोटा डिसाइड कर लीजिए, इतने परसेंट से, इतनी वैल्यू से ज्यादा के गुड्स नहीं आएंगे, कोटा लगा लीजिए। अंडर दिस गवर्नमेंट फिक्सेस द मैक्सिमम लिमिट फॉर इंपोर्टेड गुड्स, कि इससे ज्यादा इंपोर्ट आप नहीं कर सकते फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, किसी भी कंट्री से, अलग अलग कंट्री से टोटल करके इतना इंपोर्ट आप कर सकते हैं, एक लिमिट फिक्स कर दी। Both of the above tools restrict the import and are a useful tool for protecting domestic producers from foreign competition. अगर हम डोमेस्टिक कंपटीशन, अगर हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत सा आसान सा तरीके थे, जिसमें एक कोटा, फिक्सिंग ऑफ कोटा, और दूसरा इंक्रीज इन टैरिफ। ये दो पॉलिसीज हम लोगों ने फॉलो की, और हमने प्रोटेक्शन दिया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, सो दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन ग्रो। अब वो हुई या नहीं हुई,
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर आती हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन में। तो दिस इज इट, यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं। बाकी तो मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मेरिट्स, डिमेरिट्स, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए थे, डिस्कस कर लिए थे। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी रिलेटेड वीडियोस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कार्ड सेक्शन में जाकर आप और भी काफी सारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगीर क्लासेस। थैंक यू सो मच ऑल।